الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم سبحان اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی خوبصورت محفل مبارکہ، اسٹیج پر بڑے خوبصورت علماء کرام اور بڑا اچھا بھرا ہوا پنڈال، اسٹیج کے لحاظ سے بھی اور سامنے بیٹھنے والے حضرات سب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ کچھ گزارشات میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا نا تو وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ بے شک حضور کی ذات مظہر ذات الہی ہے۔ ایک خاص بات پہ آپ کو توجہ مبذول کرانی ہے۔ بھئی باتیں نہ کریں، پیچھے والے دوست آ گئے جب پنڈال میں تو پھر تو سننی ہے آپ نے۔ بڑی مہربانی اور بڑی انعماق کے ساتھ توجہ کے ساتھ میری گزارشات سنیں۔ میں چونکہ ٹھنڈی طبیعت کا خطیب ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ میری طرف توجہ ہو۔ جوش سمجھ لیں کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو آپ نے بڑا پرجوش ماشاءاللہ خطاب سنا ہے اور اچھی بات کی طرف حضرت نے توجہ دلائی ہے۔ میں بھی بس کچھ اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیز بھائی غور کریں، کافر نے دین کی جس بات کو سب سے زیادہ متنازع بنایا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ معاذ اللہ، متنازع۔ آپ سیرت النبی کے نام سے جلسہ منعقد ہو اگر آپ کے ساتھ والی مسجد میں، اور 15 مولوی بلائے جائیں اور جلسے پہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ بھی آئے، پوسٹر بھی لگیں، بینر بھی لگیں، تو کسی بندے کو نہ بیوہ یاد آئے گی، نہ غریب اور یتیم بچے یاد آئیں گے۔ حالانکہ خرچہ تو اس پہ بھی ہوا ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن اگر حضور کے میلاد کی آپ ایک جھنڈی لگا لیں تو سارے گاؤں کو بیوہ یاد آ جائے گی اور سب کو یاد آ جائے کہ بیوہ کو دے دینی چاہیے تھی۔ بھئی ان سے بھی کبھی پوچھ لو کہ تم جو خرچہ کر رہے ہو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہمارا؟ بنتا ہے کہ نہیں؟ تو جو کہ کرنا نہیں تاں بول دے بھی نہیں، تو پکا رٹا لایا ایسی پڑے ہی نہیں، اب آئے دیتے روے جی۔ بھئی یہ بنتا ہے سوال ہمارا کہ نہیں بنتا؟ ہونا جی روٹی پکتی ہے نا مولویاں دی، چلو لنگر نہ آکھو روٹی دے ہوندی ہے نا، تو کوئی سوال اٹھاتا ہے؟ آپ میلاد کا جلسہ رکھیں تو لوگ کہتے ہیں جائز ہی نہیں۔ بالکل جائز نہیں۔ حرج کیا ہے جی؟ سیرت کبھی آپ نے سنا ہے کوفے میں مولا علی شیر خدا رہتے تھے اور انہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں سیرت النبی کا جلسہ کیا اور مدینے سے کسی صحابی کو بلایا ہو؟ سنا ہے کبھی؟ بولو تو صحیح ہے، ایسا لگتا ہے سنیا کوندے نہیں تسی، کوئی نہیں نا ایسا ہوا؟ تو سیرت کا جلسہ جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ بھئی میلاد کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد بول کے بتانا ہے، بول، پھر اس کے بعد بیان، پھر سلام۔ کیڑی شے نے جائے دے تھوڑا تھوڑا پوچھیا کرو دوستانوں، بھئی کیا تنازع کیا ہے، رٹا کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟
آپ میلاد کا جلسہ کریں تو لوگ اڑ جاتے ہیں، معراج شریف کا جلسہ رکھ لیں تو کہتے ہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی۔ منانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ یقین کریں، اور یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، امریکہ نے مسجدیں بنانے کی اجازت دی ہے۔ کسی بھی کمیونٹی میں مسلمان زیادہ ہیں، کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کی اگر کمیونٹی زیادہ ہے تو مسجد بنا سکتے ہیں، اجازت ملتی ہے۔ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ کرنے کی اور وہاں چھپوانے کی بھی اجازت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی پابندی نماز روزے پہ وہ لگاتے نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پہ خاکے چھاپتے ہیں، وہ حضور کی ذات کو متنازع بناتے ہیں، جھگڑے کھڑے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ خاکے چھایا کیے ہیں کہ نہیں ان لوگوں نے کی؟ ہمارے یہاں بھی نماز پر فجر کے فرض 2 ہیں تو سارے فرقے 2 ہی پڑھیں گے، ظہر کے 4 پڑھیں گے، عصر کے 4 پڑھیں گے، مغرب کے 3 پڑھیں گے، سب اتفاق ہے۔ آپ کوئی شان رسالت کی بات کریں، لوگ فٹافٹ چونک جائیں گے۔ علم غیب کی بات کریں، اختلاف، یا رسول اللہ کہہ دیں، اختلاف۔ بھائی ہماری سنیں، بھائی ادھر دیکھو دوستو، کوئی آپ شان رسالت کی بات، یہ ذرا اس پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے، اس لیے کہ کافر یہ بات سمجھ گیا ہے کہ اگر یہ نبی پاک تک پہنچ گئے تو کل دین یہ حاصل کر لیں گے۔ میرے ملت کے جوانوں یاد رکھنا، پگڑی باندھ کے بیٹھنا چاہیے تھا مینیجر کو، جو ہوٹل کا مینیجر تھا نا اس کو پگڑی باندھ کے بیٹھ، کیونکہ پگڑی کس کی سنت ہے؟ بولو سارے، تو جدو بڑے ہوٹلے جائیے تو کنے بنی ہوں، جو باہر پیرا کڑم باہر جو چوکیدار دروازے پہ، انہوں پاک بنی نہیں۔ یہ سازش ہے، اس کو سمجھو۔ پگڑی جج صاحب نے باندھنی ہے، جو پیچھے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اس نے باندھنی ہے، کنے بنی ہوں، کس کی سنت ہے؟ آپ سمجھے نہیں آج تک اس بات کو۔ مولوی تو کمی کرتا ہے، کمی دی گل دی کیڑی اہمیت ہوں، وہ تو ملوانا ہے، اس کی تو آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، توڑا لگے لے کے آ جانا بول پہ دانے لینے۔ آپ نے سمجھا نہیں ہمارا امام ہے، خیال ہی نہیں کیا آج تک۔ مولوی وہ ہستی ہے جو آپ کے اور رب کے درمیان وسیلہ بنتی ہے 5 وقت، وسیلہ۔ اور حشر کیا کیا ہے؟ حشر یہ ایک منظم سازش تھی، چونکہ مولوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ دیکھیں نا، جب لوگوں کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے گا نا تو سارا دین کے ساتھ کمزور۔ ہر روز ایک نیا حملہ، ہر روز۔ میں مسیح تے گل کر رہا نا، کدی سیاست دی کہ مولوی صاحب اسی ہے نا تبصرے بڑے سوندے رہنے اگے ہی، تے سانو اللہ رسول دی سناؤ، چھڈو پرا سیاستدانوں نوں دفاع کرو۔ انجی گل ہے جی، تسی بھی آندے ہو اپنے قاری صاحب نوں کہ نہیں؟ آندے چلو کچھ اتوں آندے نہیں، کچھ باہر مسیتوں نکل کے آندے ہیں۔ کی کہندے تسی سیاست دی گل ہے، انجی گل ہے جی، چلو نہیں کردے۔ تسی سیاستدانوں نوں سمجھا چھڑو بھی دین دی نہ کرن، سمجھا دیو گے یار؟ یہ میں نے جمعے میں کہا تھا، میں پھر بات دہراتا ہوں، کھڑے پانی میں پتھر پھینکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کھڑا ہے نا پانی، ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو چکا، مرزائی کافر ہے، قرار دیے جا چکے۔ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، آپ یورپ کے کسی ملک کی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ ویزا چاہیے، شرط یہ ہے کہ میں مرزائی ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، آدھے گھنٹے میں ویزا سٹیمپ ہوتا ہے۔ اور کبھی اپنے آپ سوچو تو صحیح کہ سازش کیا ہے؟ یہ کیا رٹا ہے؟ یورپ کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی اس لیے بھیجا گیا کہ مسلمانوں کو کہہ دے کہ تم صرف بس نہ کرو نبی پاک پہ، اور بھی نبی آ سکتا ہے۔ وہ ذات رسالت کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نیا شک۔ لیکن ہم ہیں رسول اللہ کے ماننے والے، سبحان اللہ، مسلمان کو سوائے اپنے رسول کے کوئی شے نظر ہی نہیں آتی، کوئی شے۔ میاں صاحب نے کیا سی، پاویں سونے ملن ہزاراں، سبحان اللہ، پاویں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار بٹاونا۔ وہ نا ڈاکٹر مسلم نظامی نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے خواجہ قطب صاحب سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، دلی میں۔
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो चुके थे बाबा फरीद साहब। सुभान अल्लाह। तो उस वक़्त वो ज़ोहद कर रहे थे, इबादत में मशगूल थे। तो ख्वाजा कुतुब साहब, बात की समझ आपको आ गई? बाबा फरीद साहब के पीर का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन और उनके पीर का नाम है बाबा। अब पहला ही एक दूजे दे सजादा नशीन सन। अब मुंडे वाला काम जरा लेट शुरू होया, पहला खलीफे सजादा नशीन होंदे सन। अब पीर साहब भी और दादा पीर भी दोनों बैठे हैं। बेटे इधर देखो, ओ छोटे पुत्र ऐ वेख्या जे मेरे वाल। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ना अपने मुरीद से कहा, बाबा फरीद साहब से, या पीरा आगे रोटी रख, पीरा आगे, ख्वाजा अजमेरी के आगे रोटी रखो। तो बाबा फरीद साहब ने ना चंगेर उठाई और घुमा फिरा के ला के ख्वाजा कुतुब साहब के आगे रख दी। सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या तेनू समझ नहीं आती, तेनू आख्या पीरा आगे रख, अब ख्वाजा अजमेरी के आगे रखो। फिर चाबा उठाया, प्लेट उठाई, ट्रे उठाई, घुमा के फिर अपने पीर के आगे। उन्होंने डांटा, मगर तेनू समझ नहीं आती पई, बेवकूफा बेअदबी पे करना है, और ख्वाजा अजमेरी मेरे पीर आगे रख। उन्होंने कहा हुजूर गलती हो गई। बाबा फरीद साहब हुजूर गलती हो गई। फिर चुकी चंगेर, फिर घुमाई ते ख्वाजा कुतुब अगे, हूं ते ख्वाजा कुतुबुद्दीन जलाल च। फरमान लगे तेरा दिमाग कित्थे आ? जदों ये गल कीती ते हजरत ख्वाजा अजमेरी ने बांह फड़ ली ख्वाजा कुतुब साहब दी। फरमान लगे कुतुबुद्दीन इनू कुछ ना आख, इनू तेरे सिवा शै नजर ही कोई नहीं आती, इनू तेरे अलावा कोई शै दिसदी ना। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा। और मुजफ्फर वारसी ने कहा था वो मेरे अंदर की रोशनी है, असासा एक कल्बो जहां वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी। और मेरे अजीज मुसलमान को सिवाय रसूल पाक के कोई शय नजर नहीं आती। ये खड़े पानी में पत्थर फेंकते हैं, और मौलवी को तो रोज मना करते हो सियासी बात ना कर, इनको भी मना करो। क्यों छेड़खानी करते, क्यों ये शरारत करते हैं? रोज कोई ना कोई रोज नया इशू, नई बात, और फिर एंकर बकायदा जितने भी एंकर पर्सन है आपके टीवी पे, इल्ला माशाल्लाह थोड़े छोड़ के, ये वजीफा खार हैं, ये मेरी मिल्लत के जवानों का रोज ज़ेन बनाते हैं। रोज कहते हैं इतने बच्चे स्कूल नहीं जा सके, इतने बच्चे ये। ओ भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से एक बात को सोचो, गौर करो। ये कोई ऐसा पागल लोग हैं जो बिल्कुल अपना घर बार छोड़ के आ गए, कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों का। इन बातों पे गौर किया करें, हर चीज को उस रंग में लिया करें जो उसका असल रंग है। नबी पाक की इज्जत का मसला सबसे नाजुक मसला है, ये सबसे बोले कहते हुजूर ने माफ बड़ा कीता है। मेरे ना जो एक बंदा जुल्म करे तो मेरा माफी मेरे छोटे भरा को मंग जाए, हो गई सुलह? नहीं तुसा कर लेनी, तुसी कुंदे ही नहीं, तुसी चले खड़े हो। तुसा आखना खैर सल है, तू पहले भतीजे को माफी मांग जा, खैर सल है। इंजे ये नबी पाक ने अपने दुश्मन को माफ किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसी सियाबी ने नबी पाक के किसी दुश्मन को माफ नहीं किया। सियाबा ने माफी ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब फतह मक्का हुआ तो कुछ गुस्ताख खाना काबा के गुलाफ में जाके छुप गए, तो उनको मशवरा दिया लोगों ने, कहा नबी पाक तक पहुंच गए तो बच जाओगे, लेकिन अगर अली के हत्थे चढ़ गए, अगर उमर के काबू आ गए तो चार चार टुकड़े करेंगे तुम्हारे। इसलिए कि ये नाजुक मसला है, इसमें नजाकत जरूरी है। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है खबरदार नबी की आवाज से आवाज ऊंची ना करना, ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार आवाज ऊंची ना करना। और ईमान वाले से कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किन से कहा है? फरमाया तेरी हज, ज़कात, रोजा, सदका सारा अनतहबत आमालुकुम, हर शय जाया करके रख दूंगा। या अल्लाह 20 हज किए, 40 साल नमाज पढ़ी, इतने रोजे रखे, सिर्फ आवाज ऊंची करने पे ही। फरमाया मसला ही बड़ा नाजुक है। नबी पाक का मसला ये नाजुक मसला है, और मुसलमान का खून जोश मारता है इस मसले में, जोश। सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, ठंडी तबीयत, ठंडी, बस जो मर्जी कहा जाओ बिस्मिल्लाह, ठंडे ही बड़े थे।
सहाबा कहते हैं हजरत उमर के करीब जाते डर आता था, लेकिन हजरत अबू बकर से हर आदमी दुख की बात कर लेता, कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर के अब्बा जी आए नबी पाक के पास और बेली ये बात सुनना, वालद आके खड़े हो गए, कहने लगे ये तालीम देते हो? हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे अबू बकर ने मुझे थप्पड़ मारा, नाबीना भी थे, बूढ़े भी थे, बीमार भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हमने कहा ये हो नहीं सकता, अबू बकर बाप को मारे तो ठंडी तबीयत है, वो तो वैसे कोई बूढ़ा गुजरे थे, अबू बकर सिद्दीक रहमत के बाजू फैला लेते हैं उसके लिए, तो अपने बाप को थप्पड़, समझ नहीं आई। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सारा कुछ ही जानते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जरा अबू बकर को। जनाब सिद्दीक अकबर आए, साहिब सुभान कंज़ुल अल्लाह। माल कहते हैं नबी पाक के सामने आके खड़े हुए तो वालिद खड़े थे। जनाब सिद्दीक अकबर समझ गए शिकायत आ गई है, यूं गर्दन झुकाई। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुझसे उम्मीद नहीं थी, क्यों मारा? गर्दन झुकी हुई। महबूब ने फरमाया अबू बकर ये सब लोग सोच रहे हैं कि अबू बकर ये काम कर ही नहीं सकता, तूने बाप को मारा है। चुप कर, मैं बोलना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। अर्ज की महबूबा इसे कहो मेरे टुकड़े कर दे, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टुकड़े कर दे, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आज इसने आपके बारे में बात की, या रसूल अल्लाह आपके बारे में, हुजूर आपके बारे में बात की है। हुजूर मैं हर शय बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपके बारे में कोई बात करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं? बरेली के इमाम का कमाल ये है कि उनका इश्क बड़ा तगड़ा है, पर गैरतमंद आशिक है, गैरतमंद। और ये सोच जनाब सिद्दीक अकबर से मिली है। फरमाया हुजूर मैं कट जाऊंगा, पर इसे कहो आपके बारे में ये बात ना करे। अर्ज की हुजूर इन्होंने आज आपके बारे में बात की है, मैंने थप्पड़ मारा है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं काट देता गर्दन। मुसलमान जज्बाती है इस मसले में, और जज्बाती होना जरूरी है। तुसी आखो सानू बुनियाद परस्त, असी है वहां, साडी बुनियाद ते है ना कोई, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ 4 ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਲੀਓ, ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ परस्त हाँ, इस वास्ते कि साडी बुनियाद है। याद रख मेरे अजीज और समझ ले, जब तक तू नबी पाक से जुड़ा हुआ है तू दीन से जुड़ा हुआ है। जब तक तुम उस पर बड़ी बड़ी जमातें निकली, आम से इंसान है बस छोड़ो उनको, क्या दीवार के ये एक नहीं दो नहीं, ये 20 दफा और पूरे पूरे हमले और मुनज़्ज़म साजिशें। लेकिन मेरे रसूल पाक की जात से मुसलमान का ताल्लुक बड़ा तगड़ा है। अमीर मिल्लत सनोसी हिंद हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुर, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीर साहब के हालात में लिखा है, पीर साहब कहते हैं जब पाकिस्तान बन रहा था ना तो हमें तो बताया गया था कलमे के नाम पे बनेगा, उनकी आने थोड़े सियासत जमहूरियत मजबूत करनी, वो केड़ी बला दा ना है जमहूरियत। इकबाल ने ख्वाब देखा है पाकिस्तान का, और इकबाल तो इस जमहूरियत को तमाशा कहते थे। वो कहते हैं जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा, जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे। और इकबाल ने तनकीद की जमहूरियत पे, कहने लगे जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो भाई ये जमहूरियत के लिए बना था। हिंदुस्तान की जमहूरियत तो आज भी अच्छी है पाकिस्तान से, 70 साल होने को है, एक दफा डिक्टेटर की हुकूमत नहीं आई, एक दफा फौजी नहीं आए। जमहूरियत के लिए बना था तो साथ ही रहना था उनके, क्यों आए थे? पाकिस्तान का मतलब क्या? उसी ऐसा तरीके पाकिस्तान है नहीं, तो हमें भी पता है, बुजुर्गों ने, हाँ हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया। पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था अगर इसमें मजहबी जज्बात शामिल ना होते। मुसलमान जब मजहबी जज्बात शामिल करता है तो फिर कोई तहरीक फतह करता है। अमीर मिल्लत की जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और कायदे आजम के अपने हालात जो इंसाइक्लोपीडिया कराची यूनिवर्सिटी ने शाया किया है, उसमें कायदे आजम का खत मौजूद है, जिन्होंने अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को शुक्रिया का खत लिखा था। सुभान अल्लाह। और उसने कहा था ये कायदे आजम के हालात में, पीर साहब के हालात में नहीं, कायदे आजम ने
लिखा और कहा पीर साहब अगर आप लोग मेरे साथ ताउन ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं हमें बताया गया था कि ये दीन नाफज करेंगे, यहाँ वो वाला दौर लाएंगे जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था, वो वाला रंग पैदा करेंगे जो सैयदना उमर फारूक ने हमें अता फरमाया, ये बताया जा रहा था। इधर देखें मेरी तरफ और गौर करें। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम तकरीरें करते थे पाकिस्तान के हक में और नबी पाक के निज़ाम की फजीलत बयान करते हैं, हुजूर के निज़ाम की फजीलत के पाकिस्तान में दीन नाफज होगा तो ये बरकत मिलेगी, ये बरकत मिलेगी। कहते हैं जो हिंदू पंडित थे ना वो माज़अल्लाह मुकाबले में तकरीरें करते, तवज्जो मेरी बात पे रखें, मुकाबले में तकरीरें करते और कहते माज़अल्लाह बड़ा जालमाना निज़ाम आएगा, तुम्हारे हाथ कटेंगे, ये होगा, वो मुकाबला करते। एक जगह हिंदुओं का जलसा था तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में, समझ आ रही है मेरी बात? तहरीक पाकिस्तान में हिंदुओं का जलसा था तो सारे हिंदू थे तो पंडित तकरीर कर रहा था, कोई मुसलमान नहीं, एक पंडित तकरीर कर रहा है और उसने तकरीर करते करते ना नबी पाक के बारे में कोई कमज़ोर जुमला कह दिया, कोई कमज़ोर बात, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कानून शरीयत के खिलाफ बात, कोई कमज़ोर बात कह दी। वहाँ कोई मुसलमान नहीं था, एक मलंग बैठा था, वो भी परा दौरी डंडा लैके, वो इन्हें तो डंडा भी बड़ा रंगीन होता है, मतैर आंदे ने उन्होंने, हाँ जी, और रकीन डंडा बड़ा, उन ते अल्लाह खैर करे सुनिया उन्होंने वड्डे पीर बना लिया ना, जिन्हें महीने ज्यादा ना नहाए उन्हें वड्डा पीर हो जाता है जी, जिन्ना ज्यादा वजन चुकन दे काबिल होवे ओडा वड्डा गौस, कड़ल पाई फिरदा है, टल पाई फिरदा है, तो पीर मनी जा रहे, मनन वालियां दी भी अजीब सोच है, हाँ जी, और वो भी शिकवा उलमा से है मुझे, इसलिए कि ये सारी जिंदगी पीर की फजीलत बयान करते रहते हैं, कभी पीर भी थोड़ी फजीलत दसी है, दसवां डेरेदार पीर जेड़ा आखे मौलवी चंगे ने, मौलवी पीरी मुरीदी का शोभा ही उन लोगों को दे दिया है जो इसके हाल ही नहीं। वो एक बुजुर्ग कहते हैं असी गौस पाक की करामत बयान करने होने तो थल्लों एक चवल जिहा बंदा तिड़दा हुंदा है, वो टल पाई फिरदा हुंदा मेरी गल हो रही है, वो भाई गौस पाक की गल हो रही है, तू अपनी समझी बैठा है। उलमा ने फजीलत उलम बयान करके ना तो लोगों ने समझा है जिहदी ये अजमत पे दसदा वो जिहड़ा छप्पड़ के किनारे बैठा खोरे ओदी पे गल करदा है, और नहीं भाई जो दीन पे अमल करे और अमल में इखलास पैदा कर ले, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते हैं वही पीर होता है, आलिम और उस पर अमल और अमल में इखलास, दीन मुकम्मल हो गया। आम दाम बरसरे मतलब बहरहाल मलंग बैठा था दूर, जब उस पंडित ने बात की ना हुजूर के बारे में कमजोर बात, तो पंडित ने वो डंडा पकड़ा, तगड़ा सा डंडा, और वो पीछे से ना कहीं से मलंग बंदा था, किसी ने रोका भी नहीं, वो पीछे से चढ़ा स्टेज पे, आंदा मैं एक ही मारिया सिरे अब मारिया जरा टेल ला के एक ही मारिया ते दूजे दी फिर लोड़ वो टह पिया, फड़ लिया उन्होंने जेल बंद करता। पीर जमात अली शाह साहब कहते मैं मिलने गया, शाह साहब फरमाते मैं मिलने गया, कहते जब मैं गया ना तो बंदा भी पंजाबी और प्योर पेंडू और साईं मलंग, कहते हैं जब मैं सामने खड़ा हुआ तो मैंने उसको कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना तो मस्जिद आए, ना तो कोई और अच्छा काम करे, ये बड़ा कमाल किया तूने, हालांकि तू तो आया नहीं। पीर साहब कहते हैं उसने मलंग होके ऐसी बात की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कहने लगा पीर साहब असी नमाज नहीं पढ़ते, साड़ी गलती है, मसीते नहीं आउंदे, साड़ी गलती है। एक जुमला का और मेरे वजूद को गर्म कर गया, कहने लगा हुजूर गुनाहगार जरूर हाँ पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना, हुजूर गुनाहगार जरूर हाँ पर रसूल दा गद्दार हुजूर गलती हो जाती भुल जाइदा, दुआ करो अल्लाह तौफीक देवे, पर गद्दार नहीं जे। हुजूर मैं मसीती नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, पर उन्हें ते नहीं ना कि मेरे सामने ही कोई मेरे नबी दी बेअदबी कर जाए, एडी भी ताकत नहीं किसी दी मेरे सामने कर जाए। अर्ज की हुजूर मैं ते एक मारिया, अजे ते एक मारिया, मैनू मौका नहीं मिलिया, दसो बचे कि मर गया? फरमाया मर गया ही। पीर साहब फरमाते ने उस बंदे दी वो मोटी गल सारी जिंदगी मेरे दिमाग चो निकली। ओ भाई गल सुनो, ये जी बार ए मुंडिया नूं तुहाडा की ख्याल है कि बड़ी तो उन्होंने तुहाडे नाल प्यार सी, उन्होंने तुहाडा मोबाइल सस्ता कीता जी? नहीं, तुहाडा बेड़ा गर्क कीता ने।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2017 ਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ है। जेड़ा ना देखो अल्लाह ताला ने सीने में दिल रखा है तो मोहब्बत भी रखी है। जब नबी पाक से नहीं करोगे तो गलत जगह करोगे, जब हुजूर से नहीं करोगे तो फिर। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में, आप फरमाते हैं मैं एक औरत पे आशिक हो गया था। तो मैं एक दिन मैंने इशा की नमाज पढ़ी, मैं सारी रात उसकी गली का तवाफ करता था। एक दिन मैंने इशा की नमाज कारी साहब के पीछे पढ़ी तो उन्होंने किरात लंबी की, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी तो फारग है तो मैं जाके काम भी लगना है। ख्याल आया मेरे दिल में। तो आप फरमाते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, ठंड की रात थी, तो मैं उसके दरवाजे की तरफ सारी रात तक, नौजवानों याद करना इस बात को, ये दाता साहब 1000 साल पहले लिख गए। फरमाते हैं सारी रात उस बीबी के घर के गिर्द मैं घूमता था, टाइम बचा के जब सारे सो जाते थे 2 मिनट के लिए छत पे आती थी, मुझे गुस्सा भी नहीं चढ़ता था। उसके वो 2 मिनट के लिए आया करती थी, पर मुझे यूं लगता था सुकून हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं एक रात, सर्दी की लंबी रात, नमाज पढ़ी तो मेरा दिल घबराए कि कारी जल्दी कर। फरमाते मैं गया और सारी रात मैं उसके घर के गिर्द घूमता रहा। 1 मिनट के लिए भी मुझे टाइम का एहसास नहीं हुआ कि सारी रात ही बीत गई। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे कोई तुझे उससे जुदा करे, तो गली गली फिरा करे, तो उसी का नाम जपा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे। मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है तो नहीं कहा करे। कहते हैं सारी रात मैं घूमता रहा, सहरी के वक्त वो आई, सहरी के वक्त, और छत पे चढ़ते कहने लगी मेरे घर में मेहमान है, आज नहीं आ सकती। तो ये लफ्ज कह के वो नीचे उतर गई, मुझे पता ही ना चला सारी रात, कोई गुस्सा ही ना आया। मैंने कहा बेचारी मजबूर है। मैं वापस पलटा तो फजर की अजान हो रही थी। कहते हैं बस दिल पे चोट लगी। मैंने कहा अब्दुल्ला अगर तू बीबी के लिए सारी रात खड़ा रह सकता है तो मोहम्मद अरबी के लिए भी रह सकता है। अगर तू बीबी के लिए सारी रात खड़ा रह सकता है तो तू कुरान पाक की तिलावत के लिए भी रह सकता है। मैं समझ गया कि मोहब्बत असल वही है जो रसूल पाक से की जाती, असल वही है जो अल्लाह से की जाती, जो कुरान पाक से। मैं समझ गया। और मिल्लत के जवान, तुझे बता के ना कि वो तेरी तरह के ही हैं, तुझे ये बता के कि उनके बाद भी कोई आ सकता है, तुझे बता के कि उनका इल्म तो बड़ा महदूद था, तुझे बता के कि वो भी शादी करते थे, दुनिया में रहते थे, तुझे गलत इश्क पे लगा दिया गया, गलत इश्क पर तुझे मायल कर दिया गया, और तेरे अंदर से छीन के ले गए ये रोज बरोज मोहब्बत रसूल। खुश्क खुश्क तुझे नमाज पढ़ाई, मोटा मोटा तुझे दीन का दरस दिया, और जाते रिसालत को माज अल्लाह बीच से निकाला। याद रख, जब तक तू दरवाजा रसूल पे नहीं झुकता, जब तक तुझे हुजूर से मोहब्बत नहीं होती, ना तेरा नमाज में दिल लग सकता है, ना तेरा दुरूद शरीफ में दिल लग सकता है। जब तुझे प्यार हो जाएगा ना, फिर तू जवानी में रोएगा मदीने जाने के लिए, फिर जवानी में तू तड़पेगा, फिर तू पहली बात ये करेगा कि ऐ कमेटी निकली तो पहले महबूब का दरवाजा देखना है। फिर भूल जाएंगे तुझे मोटरसाइकिल खरीदने, और भूल जाएगा तुझे ऊपर वाला छत पक्का करना। फिर पहली बात तू मदीने की करेगा। छीन के ले गए सारा कुछ। और हुक्मरान रोज नई बात करते हैं। वो कदों कहते ने, मैं अक्सर कहना साडा कदों हुकूमत कहती मसीतां बंद करो, आखे कदी उन्होंने, कदी उन्हें आखे कोई नमाज नहीं पढ़न देनी। वो तो कहते ने पढ़ो, कहते ने उंज दा दीन ले आओ जिंज दा दुबई है। हाँ, शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में आप नमाज पढ़े, बहुत बड़ी मस्जिद है, बड़ा हाल। और जनाब वहाँ पहले भी ये बात मैंने आपके गांव में की थी, फिर समझाने के लिए दोहराता हूँ, बड़ा हाल है। एसी इतना ठंडा है कि गर्मियों में ठंड लगती है, और बाहर हर किस्म का जूस भी पड़ा है, जो मर्जी फ्लेवर इस्तेमाल करो, टिश्यू पेपर घर भी ले जाओ बेशक, लेकिन उस मस्जिद से निकलो तो 1.5 किलोमीटर पे शराब खाना भी बना हुआ, क्लब भी आला बना हुआ। यूरोप वाले कहते हैं इतनी अयाशी हमारे मुल्क में नहीं जितनी दुबई में है। वो कहते हैं इस तरह का दीन यहां भी लाना है। मौलवी कौन मना करता है नमाज पढ़ाने, पढ़ा ध्यान से, पर हमें ना छेड़।
चोरी भी करने दे, शराब भी चलने दे, सारे काम करने दे। ये मेरे रसूल का दीन है। इसमें मिलावट हो सकती नहीं, इसमें मिलावट हो सकती नहीं। और दुबई वालों का खाता हमें नहीं पता कौन सा है। लोग कहते हैं पंजाब फलाने लीडर का है, सिंध फलाने का है, खैबर पख्तूनख्वा पे फलां हुकूमत करता है, बलोचिस्तान फलाने किया। मैंने कहा नहीं, तुम्हें गलती लगी है। ये जो बलोचिस्तान है ये हजरत बाबा शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये बाबा अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह का है, और सिंध हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब दाता गंज बख्श अली अजमेरी का है। तुम्हें गलती लग गई है, ये सूफिया के वतन है। तुम मिल्लत के जवानों याद रखो, माशाल्लाह। खत्म नबुव्वत पे डाका डालने वाले मुजरम, ऐसी बात ही है। बेशक पता रट्टा की है, कहने ने गलती हो गई, माफी दे छो। दसिया एक बंदा लाख रुपया चोरी कर ले, जो फड़िया जाए तो वापस करे, चोर ਨੂੰ माफी नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ, ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, नहीं ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ। सजा जिन्हें बेचारे ने आप बड़े जुल्म किए उन्होंने भी चोर के हाथ साफ करने लग पे। वो आंदा चोरी करना है तू, ओ खुदा के बंदो, यही मुतालबा उलमाए अहले सुन्नत का है, छोटा सा। जिसने चोरी किया उसे सामने लाओ, बात खत्म हो गई। भाई को गलत बात तो नहीं ना कि तनी गलती हो गई, ठीक हो गया जी, दसो किन्ने की थी, कोई छोटी बात तो नहीं ना। इतनी बड़ी तुम बात कर गए और कहते मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है आपकी मेहरबानी है। ओ भाई मोटी सी बात है, जिसने गलती की लाओ ना बंदा दो, बात खत्म हो गई, उसको सजा दो उस पे के। और कोई गद्दारी नहीं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, जो आईने पाकिस्तान कहता है उस पर सजा नाफिज करो, ऐलान करो, कमीशन कायम करो, कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला करो, फैसले पर सजा दो। ये मोटा सा मुतालबा, इस पे अमल होना चाहिए। देखो ना, चोरी की चोर ने, उसने कहा मैंने की, मैंने गलती, तो तू सजा भी लाए, मैदान में आ ना, सजा लो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम सुयूती ने हदीस लिखी है, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने चोरी की। जब सरकार के सामने लाए तो हुजूर ने फरमाया गर्दन काट दो। एक सहाबी ने कहा हुजूर चोर की सजा तो हाथ काटना। मैं अच्छा चलो हाथ काट दो, चलो। फरमाते हैं हाथ कटा, हजरत अबू बकर के ज़माने में उसने फिर चोरी कर ली, फिर दूसरा कटा, फिर चोरी कर ली, फिर चोरी कर ली, फिर चोरी कर ली। एक वक्त आया कि फांसी देनी पड़ी, गर्दन। पहले दिन ही कहा था, पहले दिन कट जाता तो बहुत सारे लोग लुटने से बच जाते। हम ये कहते हैं अगर आज सजा ना हुई वो बहुत सारे निकलेंगे, बाद में भी बड़े निकलेंगे। जो 2/3 अक्सरियत लेके आएगा वो तमाशा लगा देगा। पर मेरा सवाल है, याद रखना, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना, जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। अगर खत्म नबुव्वत पे डाका डालने वाले मुजरम है तो वोट देने वाले उससे बड़े मुजरम हैं। हाँ याद रखें, मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना, पर सच्ची बात तो सुन लो ना, ये सच्ची बात, इसको सुनो। जालिमों का मददगार भी, जो किसी को ठप्पा लांदे हो ना, ਉਹਦਾ तर्जमा है वे कि तू जो करेगा मैं तेरे नाल हाँ। भावें तुसी बात च आखो वेखो जी सानू की पता, तुहानू सारा पता है जनाब। जो ठप्पा लांदे दा तर्जमा की है, मैं तेरे, और जो स्याह सफेद करे फिर तुसी ओदे नाल हो भाई, जो जिवें हो करे। बिल्कुल कतई तौर पे ये याद रख लो, इमाम मालिक ने फतवा दिया जालिम का मददगार भी जालिम। एक दर्जी खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर मैं जालिमों को कपड़े सी के देता हूँ, मैं तो नहीं ना मददगार। दर्जी आप फरमाने लगे नहीं, जालिमों का मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा देगा, तू तो पूरा जोड़ा सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है। तो पूरा सूट सी के पे देना है। ਇਹਦਾ तर्जमा पता की जे, वोट पाने वाला मददगार है जेड़ा बूहे के दफ्तर ही खोल ले। इलेक्शन ते जिन्हें दफ्तर ही बनाया हो, बड़ा चाह है हम लोगों को, फ्लैक्स होगी सस्ती, हर बंदा फोटो लवाई फिरदा है, हर बंदा। बस कर यार, तुझे पता नहीं किसकी सपोर्ट कर रहा है, तू खबर ही नहीं तुझे। जालिम की, उसकी जो दीन भी लूटेगा, मुल्क भी लूटेगा, वतन भी लूटेगा, हर शय लूटेगा। आज तक नहीं ख्याल आया, कौम कब समझेगी?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਲਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਅੱਗੇ भी निकलो भाई, ये तो बुनियादी जरूरतें। बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया क्या मांगती है। दुनिया कहती है उधर उधर बैठ, कौम का लीडर खात्म होता है, इधर आके बैठ सड़क पे। सड़क पे बैठे हैं मुल्कों के सदर, तो जनरल काउंसलर नहीं बहिंदा सड़क पे। तो काम पै तो जाए, एक बारी जाया जे हाँ सवेरे चौधरी साहब मेरे नाल चलो, आंदे ने गड्डी कराई आ, एवं तो नहीं ना थाने जा हुंदा। ते फिर अल्लाह खैर करे जी तुहाडी साडी पुलिस है, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਾੜਾ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਏਗਾ। ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਥੀ ਚੋਖੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸਰਵਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਆ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2000 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਐਸਐਚਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕੁੱਲ 2000 ਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਲੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਣਗੇ तो सेंज हथ बदे चौधरी साहब अगो नहीं 50 गाला एसएचओ कड्डियां थे, 50 चौधरी। डर नहीं आता अल्लाह से, शर्म नहीं आती? बेटी का बाप है, ये गलती है, ये गरीब है, ये जुर्म है। इकबाल ने कहा था है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। उसकी वजह सिर्फ ये है कि तूने नुमाइंदा वो मुंतखब किया है जो तेरा है ही नहीं, जिसने टिकट बुक करा के रखी है। जीत गया तो यहाँ रहेगा, हार गया तो लंदन चला जाएगा, हुकूमत करेगा तो इधर रह के, और जब खत्म होगी तो टिकट बुक होगी। बस कर, निकल इस फंदे से बाहर आ। मेरे रसूल कायनात सरवरे दो आलम के साथ मोहब्बत का रिश्ता बना, गुलामी का रिश्ता। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब बिलाल को कहा, ओ अबशन के बेटे। क्या कहा? किदे पुत्र सन? अबशन दे सन ना, क्या वो अबशन के बेटे? लेकिन हजरत बिलाल ने प्यार मुस्तफ़ा से किया था ना। हजरत सैयदना बिलाल कहते हैं मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मैं अबशन का बेटा हूं तो मेरी गलती क्या है? क्या गलती? चौधरियां दे मुंडियां पैसे जमा कराए सन अल्लाह ने, माज़ अल्लाह, कि सानू चीमियां चौधरियां चठियां दे घर पैदा करी। किसने कहा है किसी को? और मैं तो कहता हूं मुजरम वो नहीं जो अपने आप को चौधरी कहता है, मुजरम वो है जो अपने आप को कमी समझता है। तू बड़ा मुजरम है, क्यों छोटा समझना है? रसूलुल्लाह वाले छोटे नहीं होते, नबी पाक के गुलाम छोटे, उनको तो अल्लाह कहता है कुन तुम खैरा उम्मती, तुम्हें मैंने सारी उम्मतों का सरदार बनाया है। तेरी गलती है, तू अपने आप को छोटा जानता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह करीम की नजर में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो अच्छी भी होती हैं इन लोगों की भी। एक बात उसने लिखी, कहता है मैं दौरे पे गया यूरोप, एक यहूदी स्कॉलर से मेरी मुलाकात हुई, पीएचडी कर रहा था, तहकीक कर रहा था, थीसिस लिख रहा था। तो उसका जो निगरान था ना, ये जब पीएचडी करते हैं ना लोग यूनिवर्सिटीज़ के, तो इनके ऊपर एक निगरान मुकर्रर होता है। कहते हैं वो दोनों बैठे थे एक होटल में, तो मेरी मुलाकात हो गई। मैंने वो जो कर रहा था वो स्कॉलर था पीएचडी का, और जो करवा रहा था वो पीएचडी था। तो मैं चला गया, तो मैंने ना कुछ अरबी की चीज़ें भी देखी उनके पास। मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने कहा क्या रिसर्च कर रहे हो? तो कहने लगे आप नाराज़ हो जाएंगे, आप ना पूछें। और मैंने कहा नहीं मैं नहीं नाराज़ होता। मैंने कहा मैं मुसलमानों के बारे में लिख रहा हूँ। कहता मैं बोला ही मुसलमान है, तुसी गल करो। एन भी इंजे दी ना ये ढेर सारे। तो कहते हैं उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ और मैं रिसर्च कर रहा हूँ मुसलमानों पे। कहा किस शोबे में? कहने लगा ये रिसर्च कर रहा हूँ कि मुसलमान शिद्दत पसंद बने। कहते मैंने उसको कहा फिर नतीजा क्या निकला?
کہنے لگا نتیجہ یہ نکلا ہے، میرے تھیسس مکمل ہو گئے ہیں، مقالہ رجسٹریشن کے لیے میں دے رہا ہوں، میں نے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ مسلمان ہر شے برداشت کر لیتا ہے، پر ان کے نبی کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو پھر نہیں برداشت کرتا۔ نبی کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو برداشت کہتا۔ میں نے اسے کہا اوئے اے نا ذرا دھیان نہ لے، اس مسئلے میں بھی شدت پسند ہوں، اے تو صحیح نہیں لیا، ہاں یہ صحیح نہیں لیا، اس کا ذرا صحیح کر کے لے۔ لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، آپ کو لوگ کہیں گے اتنا سپیکر چلایا ہے، ساری رات سونے نہیں دیا۔ میلاد کی محفلیں ہوں گی تو بڑے لوگ، سیٹھ لوگ اعتراض کرتے، سونے جلوس نکالا جی، دیکھو جی اپنے اپنے نصیب ہے نا بھائی، تو چودھری ہو کے، سیٹھ ہو کے، ابھی الیکشن آئے گا تو جعلی سیاستدانوں کے جلسے شروع کر دے گا، گلی گلی تو گھومے گا، نگر نگر تو جلوس نکالے گا، جیب سے پیسہ بھی لگائے گا، اور ساری ساری رات تو سپیکروں پہ بات بھی کرے گا، پھر نہ تجھے نیند کی پرواہ ہوگی نہ تجھے کسی اور شے کی۔ اپنے اپنے نصیب ہے نا، تو جھوٹے کے نعرے لگاتا ہے، ہم سچے رسول کے نعرے لگاتے ہیں، یہ نصیب ہے نا ہمارے کھاتے آیا رسول اللہ کا نعرہ۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ غریب لوگ محفل میں آتے ہیں، بڑے لوگ نہیں قریب آتے، نہیں قریب آتے، اس لیے کہ یہ تو اس وقت جاگیں گے جب الیکشن کا زمانہ آئے گا، پھر یہ گلی گلی گھومیں گے۔ بھائی تو بھی گلی گلی گھوم، انہیں کہ سیاستدانوں کے نعرے لگانوں سے دنیا ٹھنڈی نہیں ہوگی، لوگ اس وقت ہی ٹھنڈے ہوں گے، امن اسی وقت قائم ہوگا، سکون اسی وقت قائم ہوگا جب میرے رسول کے نام کے نعرے لگیں گے، جب لوگ حضور کے نام کے قریب جا کے سکون محسوس کریں گے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ محبوب پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا